Today we will discuss the topic that is the limitation of octet rule. But before the topic limitation of octet rule, you must see the topic in which I have explained the how to draw the Lewis dot structure of covalent compounds. Because बेटा अगर वो टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो इस टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग में आपको काफ़ी दिक्कत आएगी. Now before I start the limitation of octet rule, you must know, हमने डिस्कस किया था what is octet rule. Octet rule says कि any atom combine just to acquire a set of 8 electrons in valence shell. एटम्स कंबाइन करते हैं सो दैट उनकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और वी कैन से दिस इज द यू कैन से कंडीशन फॉर द बॉन्डिंग आल्सो, जो हमने स्टडी किया है. अब वी आर हैविंग सम लिमिटेशंस और यू कैन से वायलेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल. सो जस्ट सी द वायलेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल. सो द फर्स्ट, आई विल जस्ट रिमूव दिस, नो नीड ऑफ दिस. So the first violation of the octet rule is hydrogen does not complete octet. Instead, hydrogen completes duplet. Duplet means you can say a set of 2 इलेक्ट्रॉन्स. हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा और विद द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करेगा. सेकेंड लिमिटेशन की बात अगर की जाए और वायलेशन की, जो आपकी नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस दे हैव ऑलरेडी और यू कैन से ऑलरेडी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कंप्लीटेड ऑक्टेट. उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है. Even though xenon forms compounds just like HCF2, HCF4 और HCF6. तो xenon का जो ऑक्टेट है वो ऑलरेडी कंप्लीट है, इवन दो ये कंपाउंड फॉर्मेशन क्यों कर रहा है या कर रहा है. दिस इज आल्सो यू कैन से द वायलेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल. नाउ द नेक्स्ट वायलेशन इज, these are the 2 violation I have done. Now the third violation is electron deficient compound does not obey octet rule. So students, what are electron deficient compound? First see the meaning of this. Electron deficient compounds, these are the compounds in which central atom has less than 8 electrons in valence shell. Valence shell में बेटा अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, that particular compound is said to be the electron deficient compound. We will see the example BeCl2. This is the structure of BeCl2. अब अगर आप बेरिलियम के अराउंड इलेक्ट्रॉन काउंट करो, सो बेटा एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में. It has 4 electron that is less than 8. So BeCl2 is said to be the electron deficient compounds. We will see one more example. BeCl3. In the BeCl3, अगर आप बोरोन के अराउंड इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो हमारे पास 1 2 3 बॉन्ड है. 2 इलेक्ट्रॉन here, 2 इलेक्ट्रॉन here, 2 इलेक्ट्रॉन here. Total it will have the 6 electron. Again this number is less than 8 electrons. So ध्यान रखिए, जो आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, these also does not obey the octet rule. And electron deficient compound are the compound in which bond formation के बाद जो सेंट्रल एटम है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम है. So this is the third violation. Now the fourth, hypervalent compounds also does not obey octet rule. जो हाइपरवैलेंट कंपाउंड है बेटा वो भी ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते. नाउ व्हाट आर हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स? कंपाउंड इन विच
central atom contains more than 8 electrons in the valence shell. वैलेंस शेल में बेटा अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो. सो आई विल एक्सप्लेन 2 स्ट्रक्चर्स हियर. फर्स्ट हम PCl5 को स्टडी करेंगे, सेकेंड वी विल स्टडी SF6. सो इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5, दिस विल बी लुक लाइक दैट. नाउ फास्फोरस के अराउंड अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो 5 बॉन्ड है एंड ईच बॉन्ड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज ग्रेटर देन ऑक्टेट और 8 इलेक्ट्रॉन. सिमिलर कुछ कंडीशन हमें मिलेगी SF6 में. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SF6. Now if I calculate the electrons around the sulfur, so we are having 6 bonds and each bond contain 2 electrons. So there are total 12 electrons. Again this is greater than octet or 8 electron. So these species having the, you can say, number of electron more than 8 around central atom is said to be the hypervalent species, and these also does not obey, you can say, the octet rule. Now the fifth and the last limitation, there are some species which are said to be the odd electron species. These odd electron species also does not obey octet rule. Now first बेटा हम देखेंगे what is the meaning of odd electron species. These are the species which contain odd number of electrons in double bond. Normally जब हम डबल बॉन्ड बनाते हैं तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट यहाँ पर क्या होंगे, वी आर हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो हम एक एग्जांपल भी देखेंगे, बट उससे पहले एक कंडीशन आपको बताऊं कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं इनकी कंडीशन है कि ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ये बनेगा कब. ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मतलब जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑड नंबर में होगा इन द डबल बॉन्ड. इट मे बी 1, इट मे बी 3, इट मे बी 5. अब इसकी कंडीशन क्या है. नाउ तो कंडीशन बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है. द कंडीशन इज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है बिटवीन द 2 एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन 2 एटम्स इज नॉट मोर देन 0.5. अगर इससे ज़्यादा का डिफरेंस होगा तो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनेगा. दैट यू हैव टू रिमेंबर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और जहाँ तक इसकी स्ट्रेंथ की बात है, द स्ट्रेंथ इज, यू कैन से, हाफ ऑफ अ नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड. जो आपका नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है उसके कंपैरिजन में इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, हाफ होगी. और सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि ये जो आपका ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या स्पीसीज हैं, दीज आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव. एक्सट्रीमली रिएक्टिव मीन्स दे readily फॉर्म डाइमर. डाइमर मीन्स बेटा 2 स्पीसीज बहुत जल्दी जुड़ जाती हैं. सपोज मैं आपको बताता हूँ, एक ये NO2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरी स्पीसीज NO2, ये नाइट्रोजन पे ऑड इलेक्ट्रॉन आए, ये फटाफट कंबाइन करेंगे एंड दे विल फॉर्म N2O4. क्योंकि ऐसा करने पर ऑड और ऑड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ये क्या बन जाएगा, दिस इज नाउ इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. सो जो आपकी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है वो जनरली डाइमर मीन्स 2 यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं ताकि उनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सके. सो कंडीशन होगी, स्ट्रेंथ होगी, रिएक्टिविटी होगी. अब एक एग्जांपल भी देखते हैं. अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन का डिस्कशन करें, सो ऑक्सीजन में बेसिकली वी आर हैविंग 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और नाइट्रोजन में बेटा 1 2 3 4 5.
अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, टू कंप्लीट द ऑक्टेट ये डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये हमने बेटा डबल बॉन्ड बना दिया, क्लियर। बट डबल बॉन्ड बनने के बाद इस नाइट्रोजन का जो ऑक्टेट है इट इज इनकम्प्लीट। यहां पर नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, सो व्हाट दे विल फॉर्म्ड, अब एक बॉन्ड बनेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के और 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, दिस इज अ 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन मैं ऊपर दिखा रहा हूं सो दैट देयर विल बी नो कंफ्यूजन। सो ये जो आपका बॉन्ड है इट इज अ 3 electron bond and this NO is said to be odd electron species. Clear to all of you? So ये आपको ध्यान रखना है कि जो odd electron species हैं वो भी हमारे that is you can say octet rule को नहीं मानती, you can say they violate the octet rule. इनके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो आपको ध्यान रखने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज फार एज स्ट्रेंथ इज कंसर्न हाफ दैट ऑफ नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है, और बहुत जल्दी ये डाइमर बनाती हैं सो दैट ये भी अपने आप को किस में कन्वर्ट कर सकें, स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। सो एक एग्जांपल मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। सो दीज आर द स्टूडेंट्स 5 मेन लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। दैट्स ऑल।